Hello students, good morning. Welcome to SAS online classes. Student, we were reading chapter 5, names of animals and birds of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topic was people and place name and animals and bird name. So students, we have read about people and place name and animal and birds name in our last video, and included this topic we have read and solved exercise C and exercise D, which on page number 13 in our English language book Cornerstone in our last video. And student, we have also read and solved exercise O, answer this question, and exercise C, fill in the blanks with the words given in the box of this chapter 5 in our Fair English language notebook in our last video. And students, today's our topic is animals, babies, sounds and homes. So students, today we will read about animals, babies, sounds and homes, and included this topic student, today we will also read and solve exercise E of this chapter 5 in our Fair English language notebook in our today's class. Okay, so all students press partial listener class and listen to my words clearly, because today we are going to read about animals, their babies and sounds and home. Okay, so all students look at the page number 14. Let's see. Animals, babies, sounds and homes. Okay, animals means जानवर, babies means बच्चे, sounds means आवाज़ें, and means और, homes means घर. Okay, so students, today we will read about animals, their babies, their sounds and their homes. आज हम जानवर, उनके बच्चों, उनकी आवाज़ें और उनके घरों के बारे में रीड करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज जानवर, उनके बच्चे, उनकी आवाज़ें और घर. ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट बेबी एनिमल्स, देयर साउंड्स एंड देयर होम्स. ओके, लेट अस लर्न. ओके, चलिए सीखते हैं अबाउट मीन्स बारे में बेबी एनिमल्स. ओके, जानवरों के बच्चे. ओके, देयर साउंड्स, उनकी आवाज़ें, एंड मीन्स और देयर होम्स, इट्स मीन उनके घर. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट बेबी एनिमल्स, देयर साउंड्स एंड देयर होम्स. इट्स मीन जानवरों के बच्चे, उनकी आवाज़ें और उनके घरों के बारे में सीखते हैं. ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, it's a picture. Let's see first number picture. It's a picture of a dog and a puppy. Okay, so students, firstly dog, dog means kutta. Okay, and student, we call dog baby puppy, puppy, puppy means pilla. Okay, it's a dog है ना, and it's the baby of dog. ये जो डॉग है, डॉग का जो बेबी है, इसका नाम क्या है? पप्पी से बोलती है. ओके, वी कॉल डॉग्स बेबी पप्पी, puppy, पप्पी मीन्स पिल्ला. ओके, एंड स्टूडेंट्स, दिस वी कॉल्ड डॉग साउंड एंड पपी साउंड वूफ. ओके, WOOF वूफ. ओके, वूफ मीन्स होता है बार्क, भौंकना. क्लियर? एंड वी कॉल्ड डॉग्स होम कैनल, KENNEL, कैनल मीन्स कुत्ता घर. ओके, जिसमें डॉग रहता है. क्लियर? डॉग्स होम. क्लियर? तो स्टूडेंट, लेट्स सी द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड अ पपी. ओके, द बेबी ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते का बच्चा, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, अ पपी मीन्स एक पिल्ला. ओके, द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड अ पपी. इट्स मीन एक कुत्ते का बच्चा पप्पी कहलाता है, एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम एक डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? पप्पी बोलते हैं. ओके, पिल्ला बोलते हैं. इट लिव्स इन अ कैनल. ओके, ये किस पे रहता है? इट मीन्स ये लिव्स मीन्स रहता है, इन मीन्स में, आ मीन्स से, कैनल मीन्स कुत्ता घर होता है. ओके, डॉग्स होम वी कॉल्ड कैनल. तो ये कैनल में रहता है, कुत्ता घर में रहता है. इट सेज वूफ. ओके, और ये क्या कहता है? इसका जो साउंड होता है, कैसे साउंड करता है? ये वूफ का साउंड करता है, WOOF. वूफ मीन्स स्टूडेंट्स होता है बार्क करना, भौंकना. क्लियर? So students, we call dogs baby puppy, and we call dog sound woof, and dog and puppy lives in kennel. Okay, dog और जो पप्पी होता है पिल्ला, तो वो कहाँ पे रहते हैं? कैनल में रहते हैं, कुत्ता घर में रहते हैं. क्लियर? लेट्स सी सेकेंड वाला पिक्चर. It's a picture of a cow and its calf. Okay, and it's a home said. Okay, and it's a moo. Okay, so students, says a cow. Okay, ये cow है, COW, cow means गाय. Okay, and we called cows baby calf, CLF. calf means students, say the meaning of cough. cough means होता है बछड़ा. and students, we called cows sound moo. Okay, तो MOO moo means students होते हैं रंभाना. Okay, and students, cow lives in shed. जो cow होती है वो किस पे रहती है? shed में रहती है. SHED, shed means students होता है, hear the meaning of shed, that गौशाला. Okay, तो जो काऊ होती है वो गौशाला में रहती है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द बेबी ऑफ अ काऊ इज कॉल्ड अ काफ. ओके, द बेबी मीन्स बच्चा, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, काऊ मीन्स गाय, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, आ मीन्स एक, कॉल्फ मीन्स बछड़ा. ओके, गाय का बच्चा, कॉल्फ मीन्स होते हैं बछड़ा, ये गाय का बच्चा. द बेबी ऑफ अ काऊ इज कॉल्ड अ कॉफ. इट्स मीन गाय का बच्चा
बछड़ा कहलाता है। ओके, हम काऊ के बेबी को कॉल बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। क्लियर? इट लिव्स इन अ सेड। ओके, ये कहाँ पे रहती है? सेड में रहती है। सेड सेड में स्टूडेंट्स, सेड मीन्स होता है गौशाला या छप्पर। ओके, इट सेज मुँह। ओके, और ये क्या कहती है? ये मुँह कहती है। डबल मुँह मीन्स स्टूडेंट्स होता है रंभाना, ये रंभाती है। क्लियर? इसके साउंड को हम बोलते हैं मुँह, ये मुँह का साउंड करती है। क्लियर? Let's see third number picture. It's a picture of a lion, its curve, its home den and its sound road. Okay, let's see the baby of a lion is called cub. Okay, the baby means बच्चा, of means का, a means एक, lion means शेर, it means है, called means कहते, a means एक, cub means, या the meaning of cub, cub means students होता है शेर के बच्चे को हम बोलते हैं cub. Okay, बच्चा सिंह जिसे बोलते हैं। क्लियर? इट लिव्स इन अ डेन, ये किस में रहता है? डेन में रहता है, गुफा में रहता है। ओके, इट सेज रोड। ओके, क्या कहता है? रोड कहता है। इट्स मीन ये रोड का साउंड करता है। रोड मीन्स होता है दहाड़ना। क्लियर? तो स्टूडेंट्स लॉइन, ओके, विच इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, जो फॉरेस्ट का किंग होता है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं? उसके लॉयन के बेबी को हम कब बोलते हैं? ओके, इट्स मीन बच्चा सिंह या शेर का बच्चा। ओके, और लॉयन किस में रहता है? डेन में रहता है। डेन मीन्स होता है गुफा। ओके, और लॉयन के साउंड को क्या बोलते हैं? रोड बोलते हैं। जो लॉयन होता है वो रोड का साउंड करता है, दहाड़ता है। क्लियर? लेट्स सी स्टूडेंट्स, we have read about dogs and dogs baby, dogs home and its sound, and we also have read cow, its baby, its home and its sound, and last we have read about lion, lion's baby, its sound and its home. Clear? तो स्टूडेंट जो डॉग होता है, ओके, उसके बेबी को हम बोलते हैं पप्पी, और डॉग वूफ का साउंड करता है, एंड डॉग्स जो कि होम को कैनल बोलते हैं। ओके, एंड स्टूडेंट्स काऊ, वी कॉल्ड काउस बेबी कॉल्फ एंड इट लिव्स इन सैड, एंड वी कॉल्ड काउस ऑन मुँह। ओके, जो मुँह का साउंड करती है, रंभाती है। एंड स्टूडेंट्स लॉइन, वी कॉल्ड लॉइन्स बेबी कब। ओके, बच्चा सिंह जिसे बोलते हैं, बच्चा सिंह या शेर का बच्चा। ओके, एंड स्टूडेंट्स वी कॉल लाउन साउंड रोड। ओके, जो लॉइन होता है, शेर होता है, रोड का साउंड करता है, दहाड़ता है, एंड इट लिव्स इन डेन, ये गुफा में रहता है। क्लियर? स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज ई, राइट नेम्स ऑफ 5 मोर एनिमल्स, देयर बेबीज, साउंड्स एंड होम्स। ओके, राइट मीन्स लिखिए, नेम्स मीन्स नाम, ऑफ मीन्स का, 5 मीन्स 5, मोर मीन्स और, एनिमल्स मीन्स जानवर, डियर बेबीज मीन्स उनके बच्चे, साउंड्स मीन्स आवाज़ें, एंड मीन्स और, होम्स मीन्स घर। ओके, राइट नेम्स ऑफ 5 मोर एनिमल्स, देयर बेबीज, साउंड्स एंड होम। ओके, एंड होम्स इट्स मीन और घर। ओके, इट्स मीन 5 और जानवरों, उनके बच्चों और उनके घरों के नाम लिखिए। ओके, तो क्या करना है? 5 और एनिमल्स नेम, इट्स मीन 5 और जानवरों, उनके बच्चों और घरों के नाम लिखिए। ओके, तो स्टूडेंट्स now we are going to solve this exercise in our Fair English Language notebook. Okay, so let's see, chapter number is chapter 5. The name of this chapter 5 is names of animals and birds. Okay, it's mean जानवरों और पक्षियों के नाम. Okay, let's see exercise. Your exercise is write names of 5 more animals, their babies, sounds and homes. Okay, it's mean 5 और जानवरों, उनके बच्चों और घरों के नाम लिखिए. Okay, so students, let's see animals, their babies, sounds and homes. Okay, जानवर, उनके बच्चे, आवाज़ें और घर. Okay, so students, in this exercise here we can see that here are 4 column है. Your first number column, it's a animals name column, ये animal के name का column है. Okay, and students, it's a column of animals babies. Okay, ये animal के babies का column है, जानवरों के बच्चों का. And it's a column of sounds, animal sound का column है, जानवरों की आवाज़ों का. And students, your last 4 number column, it's a column of homes, it's a column of animals home, ये animal के home का column है. Clear? So let's see students, your first number animal is dog. Okay, dog means कुत्ता. Okay, तो students, we call dogs baby puppy means पिल्ला. Okay, and students, we call dog sound woof, WOOF. Woof means students होता है bark, it means भौंकना है. Okay, and students, dog lives in kennel means कुत्ता घर. Clear? Let's see second number animal. Your second number animal is cow, 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 and it's a very useful animal. Okay, and we call cow माता. Clear? हम गाय को गाय माता बोलते हैं. And students, cow, it's an animal. Okay, and we call cow baby calf means बछड़ा. Okay, या गाय का बच्चा. And we call sound of cow के sound को हम बोलते हैं मुँह. Okay, जो cow होती है मुँह का sound करती है, रंभाती है. Okay, and cow lives in shed, जो काऊ होती है वो shed में रहती है. SED, shed means होता है गौशाला. Clear? Let's see third number animal. Your third number animal is lion and it's a king of forest. Okay, ये जंगल का राजा होता है. And we call lion baby cub. Okay, cub means होता है बच्चा सिंह या शेर का बच्चा. Clear? And students, we called lion the sound roar. Okay, हम lion के sound को roar बोलते हैं. जो lion होता है वो roar का sound करता है, ROAR. roar में students होता है दहाड़ना. Okay, and students, lion lives in den. जो lion होता है वो den में रहता है, गुफा में रहता है. Clear? Let's see 4 number animal. Your 4 number animal is lion. Okay, sorry, your 4 number animal is owl.
OWL, all means होता है उल्लू. Okay, and student we called all baby owlet, OWLET, owlet. Owlet means students होता है छोटा उल्लू. Okay, या उल्लू का बच्चा. Clear? And students we called all sound hoot, HOOT, hoot. Okay, तो जो all होता है hoot का sound करता है. Hoot means होता है घृणा सूचक मतलब आवाज़ करना. ओके इसे हम बोलते हैं जो हुट होता है घृणा सूचक की एक ध्वनि होती है. और ये हुटिंग कौन करता है? ये जो हुट करता है ऑल, उल्लू करता है. ओके एंड स्टूडेंट्स ऑल लिव्स इन नेस्ट. जो ऑल होता है वो नेस्ट में रहता है, घोंसले में रहता है. क्लियर? लेट्स सी 5 नंबर एनिमल नेम. योर 5 नंबर एनिमल नेम इज एलिफेंट, ELEPHANT. एलिफेंट मीन्स हाथी एंड इट्स अ बिग लैंड एनिमल. ओके एंड इट्स वी कॉल एलिफेंट बेबी कॉल्फ, CLF, कॉल्फ. हियर द मीनिंग ऑफ कॉल्फ. कॉल्फ मीन्स स्टूडेंट्स होता है हाथी का बच्चा. ओके एंड स्टूडेंट्स वी कॉल्ड एलिफेंट साउंड ट्रम्पेट. ओके TRUMPET, ट्रम्पेट. स्टूडेंट्स जो एलिफेंट होती है ना वो ट्रम्पेट का साउंड करे. इट्स मीन ट्रम्पेट मीन्स होता है चिंगारना, चिंगारते हैं. ओके एंड एलिफेंट्स लिव इन जंगल. एलिफेंट कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं. क्लियर? लेट्स सी 6 नंबर एनिमल नेम. योर 6 नंबर एनिमल नेम इज हैन, HN, हैन मीन्स मुर्गी. एंड स्टूडेंट वी कॉल्ड हैन बेबी चिक, CHICK. चिक मीन्स स्टूडेंट्स होता है चूजा, CHICK. चिक मीन्स चूजा. एंड स्टूडेंट्स वी कॉल्ड हैंड साउंड क्लुक, CLUCK. क्लुक मीन्स स्टूडेंट होते हैं कुड़कुड़ाना. ओके कुड़ू को करना. एंड स्टूडेंट्स हैंड लिव्स इन कूप. जो हैंड होती है वो कूप में रहती है, COOP. कूप मीन्स होता है पिंजड़ा. क्लियर? लेट्स सी 7 नंबर एनिमल नेम. योर 7 नंबर एनिमल नेम इज मंकी, MONKEY. मंकी मीन्स बंदर. एंड वी कॉल्ड मंकीज बेबी इन्फेंट, INFANT. हियर द मीनिंग ऑफ इन्फेंट दैट मंकी के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट. ओके बंदर का बच्चा. एंड स्टूडेंट्स वी कॉल्ड मंकी साउंड चैटर. जो मंकी होते हैं वो चैटर का साउंड करते हैं, CHATTER. चैटर मीन्स होता है ची ची की आवाज़ करना. एंड स्टूडेंट मंकी लिव्स इन ट्रीज. जो मंकी होते हैं वो ट्रीज में रहते हैं. ओके ट्री मीन्स पेड़, TREE. ओके तो मंकी किस में रहते हैं? ट्री में रहते हैं. एंड स्टूडेंट्स योर 8 नंबर एनिमल नेम इज frog, FROG. frog means मेढक. and we called frog baby tadpole, TADPOLE. tadpole means होता है स्टूडेंट मेढक का बच्चा. ओके एंड स्टूडेंट्स we called frog sound croak, CROAK. ओके croak. तो जो स्टूडेंट्स फ्रॉग होते हैं ना, मीडियम होते हैं, क्रोक का साउंड करते हैं. क्रोक मीन्स होता है टरटराना, टर की आवाज़ करना. ओके टर ऐसे बोलते हैं मीडियम. एंड स्टूडेंट्स फ्रॉग लिव्स इन वाटर. फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहता है, पानी में रहता है. ओके लेट्स सी 9 नंबर एनिमल नेम. 9 नंबर एनिमल नेम इज हॉर्स, HORSE. हॉर्स एंड इट रन वेरी फास्ट. बहुत तेज ये रन करते हैं. ओके बहुत फास्ट रन करते हैं, बहुत तेज दौड़ता है. एंड स्टूडेंट वी कॉल हॉर्स बेबी कॉल्ट, CLT. कॉल्ट मीन्स होता है घोड़े का बच्चा. ओके एंड स्टूडेंट्स वी कॉल्ड हॉर्स साउंड नाई. ओके ये नी का साउंड करता है. NEIGS. नाई मीन्स स्टूडेंट्स होता है हिनहाना. जो हॉर्स होते हैं वो हिनाते हैं. ओके एंड स्टूडेंट्स हॉर्स लिव इन स्टेबल. जो हॉर्स होते हैं वो स्टेबल में रहते हैं, STABLE. स्टेबल मीन्स होता है स्टूडेंट अस्तबल. क्लियर? लेट्स सी 10 नंबर एनिमल नेम विच इज लास्ट एनिमल नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज. योर 10 नंबर एनिमल नेम इज डक, DUCK. डक मीन्स होता है बतख. एंड स्टूडेंट्स वी कॉल डक बेबी डकलिंग, DUCKLING. डकलिंग. हियर द मीनिंग ऑफ डकलिंग. डकलिंग मीन्स स्टूडेंट्स होता है बतख का बच्चा. ओके एंड स्टूडेंट्स वी कॉल डक साउंड क्वैक. क्वैक का साउंड करती है डक, QUACK. क्वैक मीन्स होता है काका करना. ओके तो ये काका का साउंड करती है, क्वैक का साउंड करती है. एंड स्टूडेंट्स डक लिव्स इन वाटर. जो डक होती है वो वाटर में रहती है. ओके तो स्टूडेंट्स जो फ्रॉग होता है एंड डक, तो ये दोनों लोग कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं. वाटर मीन्स पानी. क्लियर? So students, we have read and solved this exercise of this chapter 5 and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any animal's name, their babies, sound and home of this exercise. Okay, so students, we have finished our today's topic and I hope you must have understood today's topic. You have no problem in this exercise. Okay, so students, today's classwork is that note down exercise E of this chapter 5 in your Fair English Language notebook. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn exercise E of chapter 5 from your Fair English Language notebook. It's your today's homework. Okay, तो स्टूडेंट आपका क्लासवर्क है कि आपको एक्सरसाइज ही अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक पे विथ योर बेस्ट हैंड राइटिंग नोट डाउन करने. क्लियर? सुंदर सुंदर सी राइटिंग में नोट डाउन करना है. इट्स अ 2 days क्लास आपका क्लासवर्क है आज. एंड स्टूडेंट आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज ई अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से लर्न करना है. एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग वर्क बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज ई. I have explained animals, their babies, sounds and homes name. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Note down exercise E of this chapter 5 in your Fair English Language notebook with the best handwriting and send me a work here. Thank you.